गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टुडे इज अवर टॉपिक। हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। एनटीटी का हमारा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग ये कोर्स है, इसमें फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इट मीन्स अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। पेपर 1 इसका कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा पेपर 2 स्टार्ट होगा। पेपर 2 में चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। And child psychology is the evident from the nomenclature is the psychology of the child. Basically it is an important branch of psychology. ये एक psychology की important branch है. Modern psychologists define the psychology as the positive. वो कहते हैं कि psychology बहुत positive science है to of human behavior which endurance to the understand man is the environment and a child is a human being. Definite defines age, the age below 19. Earlier psychologists maintain that childhood continues till the age of 12 and the 20. Between the age of 12 and 18 child are called the adolescents. In order of the distinguish of the first 6 years of the child life from the second stage of development. Between 6 and 12, the term infancy is the applied for the form but development being. When the child is still in his mother womb and their study of the parental stage also become important. Modern psychologists therefore believe that child psychology should comprehend child development almost from the moment conceptions to the time when they enter the adolescence period. So far, we have the concern with the perfectly literally meaning of the term life. Child psychology have the called the study of child psychology age of between 12 to 19 and 19 below the 18. But their study, any term science or the subject is the very important and necessary to define that term or subjects. By definition, definitely clearly it's being the easier determined subjects matter and fact limit the defined subject matter and area unable to study. देखिए, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने डेफिनेशन दी है, उन डेफिनेशंस को हम देख लेते हैं. Definition of child psychology. Child psychology is an individual distinct branch of the psychology. ये psychology की branch है, but अलग अलग सब बच्चे में अलग अलग डेवलपमेंट होता है, तो उसके बारे में हम अलग अलग जानेंगे. सबका सेम डेवलपमेंट नहीं होता है. तो चाइल्ड साइकोलॉजी की जो कुछ डेफिनेशन से क्रो ने दिए. चाइल्ड साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी of the individual from the parental being through the early stage of the adolescence development. And James River ने बोला है कि child psychology is a branch of psychology which study the human being in the development from the birth to maturity. हॉरलॉक ई बोलते हैं जी. देखिए, द चाइल्ड साइकोलॉजी वाज द चेंज टू द चाइल्ड डेवलपमेंट rather than the certain aspect of the development. From the ever maintains the definitions, it is clear that the child psychology or the child development is that branch of the psychology which deals significantly systematically with the child behavior is the different stages of development. Changing environments is deal with the child behavior right from the moment conceptions of the time when we enter the adolescence period. In brief, it can be said that child psychology studies child development from the conception of the age of the adolescence. It studies child physical, mental, motor, and the emotional development. His mental capacity, memories, intelligence, etc. difference span of time till a age of 18. नेचर ऑफ द साइकोलॉजी. अब देखिए, साइकोलॉजी का नेचर क्या होता है वो हमें जानना होगा.
देखिए नेचर की बात आती है, नेचर फ्रॉम अ मीनिंग definitions, the descriptions of the clear that child psychology is the positive science because it studies different stage development of the scientific manner, right? साइंटिफिक मैनर में इसको किया जा रहा है. इन द रोल ऑफ साइंस, in the role of science, child psychology has to fulfill. One minute. देखिए, इन अ रोल ऑफ द साइंस चाइल्ड, in a role of child psychology, in a role of science, child psychology has to fulfill the nature of science. देखिए nature of science and the characteristics of a futures. In the role of science, its for functions of the described deal predict human behavior. Its aim the discovering the universal law and the principle governing the interactions between the living being is the organism. And essential element साइंस ऑफ द जो कुछ एलिमेंट्स हैं, इधर साइंटिफिक मेथड क्या होता है. देखिए, a science is so called not because of it the subjects matter, because of use the scientific method or systematic faculties. क्या होता है, it's the science of the study facts, the search for the true facts. Subjects matter real and not ideal. Universality, universality at the scientific law and universal and all the world at all the time in all place. तो इसी तरह से काफी सारे cause effects and relationships, science research and the research for cause effects relationship, it materials and subjects matter, and on the basis of the such relations it create the universal and world law. Predictions. Once the case of effects the relationship established and a universal law being the formal, it's because of possible for a science to make up predictions, case and effect relations to is the basic faith of a law science. And देखिए, चाइल्ड साइकोलॉजी इज अ साइंस. कहा गया है कि चाइल्ड साइकोलॉजी एक साइंस है, विज्ञान है. लाइट ऑफ द above mentioned six characteristics, इसके अंदर six characteristics दी हैं. इट मींस चाइल्ड साइकोलॉजी यूज द साइंटिफिक मेथड. चाइल्ड साइकोलॉजी को यूज किया गया साइंटिफिक मेथड के वे में यूज किया गया. चाइल्ड साइकोलॉजी मेक यूज ऑफ सच द साइंटिफिक टेक्निक of observations, questioning, and live the history, interviews of projects, techniques, etc., etc. In modern time, in a child psychology, experiment and conduct in a order of verify many facts. In such the experiments, the child is the place in a psychological controlled environment, and his special aspect from a behavior is study. It is not a simple to compare the method of a child psychology with the methodology of the nature science. Even the methodology of the other branch of the psychology cannot directly compare with the method of the child psychology. And child psychology is a factual. कि उसका क्या factual है. Other word Rose ने कहा है कि child psychology is a positive, not a normative science. That is to say that deal with the facts they not they are the out of to be. Principle of the child psychology are a universal. उसके जो principle हैं सार्वभौमिक है, universal है. Under the similar conditions that the law of the child psychology will remain the applicable
unveiled at the time and in all the place, generally universal principle can be on the basic of the similarity hold good for the children is one part of the society are good or can be applied on other part of a society. The principle of child psychology is the veil. एक वेल क्यों है चाइल्ड साइकोलॉजी कहना चाहिए जब जो उसका प्रिंसिपल है सिद्धांत है एक वेल में मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द साइकोलॉजिस्ट हैव द achieve the validity from the continuous verifications and re-verification in various part of the world under the very varying conditions that the validity of the principle and are tested the anywhere. अब देखिए सिक्स थे चाइल्ड साइकोलॉजी के फॉर्म्स स्टेप्स थे एंड चाइल्ड साइकोलॉजी कोज द इफेक्ट रिलेशनशिप चाइल्ड साइकोलॉजी का जो इफेक्ट होता है उसके रिलेशनशिप पे क्या इफेक्ट पड़ता है चाइल्ड साइकोलॉजी स्टडी द बिहेवियर मेंटल एक्टिविटी एंड द पर्सनालिटी ऑफ द नॉर्मल बैकग्राउंड्स and the other brilliant childs in a order arrive the first case is the define the case the effect relations can know the basic of the knowledge analyze child behavior knowledge of the value of the teacher the parents gradual child welfare the child case the program are based on such knowledge of the effective relations child psychology are the predict science certain cause effect relations concerning the behavior of the child have been the established is the become a possible for the child psychologist of the predict the behavior of the other children he can further predict the development of child in the future for example, with the increase in a large city coupled with the shortage of living the accommodations absence for a personal conduct tendency of the both parents to seek jobs, javelin and delinquence of the increase and will tend the increase under the conditions or the circumstances. Child psychology has found the applications of the vocational guidance and the education guide only because of the ability of the predict. And subjects matter of the child psychology. Some subjects matter. Since subjects matter, child psychology is the itself the term child and denote the definite stage of the development humans being. According to the chronic आय की stage of growth maturations के बारे में बात की है इफेक्ट द एनवायरमेंट के और उसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है हो रहा है एंड द साइकोलॉजी एंड द सोशल इंटरेस्ट बिटवीन द चाइल्ड एंड अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी स्कोप ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी का स्कोप क्या है उसका एरिया क्या है उसका क्षेत्र क्या है उसके बारे में हम उसका क्षेत्र क्या है उसका एरिया क्या है हम स्कोप ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं स्टेज ऑफ द ग्रोथ मैच्योरेशन देखिए ग्रोथ स्टार्ट फ्रॉम द चाइल्ड विद इन अ मोव जब वो माँ के गर्भ में होता है बच्चा तब से ही उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है एंड देयरफॉर साइकोलॉजिस्ट टेक इनटू द अकाउंट ऑफ द एक्सपीरियंस parental conditions and also developments is the parental condition passed through three phases three phases होते हैं जिसके अंदर ये stage conception last from the moment of the conception till the 2 week later जब 2 week में stage immaturity ऑब्लिक क्या होते हैं cover the period from the 3rd to 18 weeks का जब होता है that time जब conceive होता है उसके बाद जो periods from third period से 18 पीरियड तक एंड मैच्योर पीरियड तब आता है कि जब फ्रॉम 18 वीक अप टू टाइम टू बर्थ तक ये मैच्योरेशन पीरियड आता है इन्फेंसी पीरियड हमारा कब स्टार्ट होता है बच्चे में जब उसका बर्थ हो जाता है फर्स्ट 6 ईयर फ्रॉम द बर्थ जब 6 मंथ्स हो जाते हैं उसके और फ्रॉम बर्थ तक चाइल्डहुड फ्रॉम 6 ईयर टू 12 तक चाइल्ड एंड लेटर 6 तक 12 18 ईयर तक एंड इस तरह से एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस अपॉन द डेवलपमेंट अ चाइल्ड लीव द ज्योग्राफिकल सोशल and the psychology environment which in either totally influence his behavior patterns or rate of the development nature and the directions of the development. It is a task of the child psychology to the study all the environmental influence and the find of the different types of environments.
देखिए बच्चे का डेवलपमेंट जब होता है ना, डिफरेंट टाइप एनवायरमेंट जैसे ही मिलेगा बच्चे का, उसी तरह से डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट सेम होता है। इट मीन्स अगर 2 और 3 मंथ्स का बच्चा कुकिंग करेगा, तो वो सभी करेंगे, पर थोड़ा कोई देर से करेगा। इट मीन्स अगर 6 से 7 8 मंथ का बच्चा, 8 9 मंथ का बच्चा बैठना स्टार्ट कर देता है आफ्टर 6 के बाद, तो सभी बच्चे उस पीरियड में बैठना, बट कुछ थोड़ा एक एनवायरमेंट उसका, किस तरह से उसको एनवायरमेंट मिल रहा है, उसको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, तो कुछ डिफरेंसेस आते हैं। एंड द मेंटल प्रोसेस ऑफ अ चाइल्ड, चाइल्ड का मेंटल प्रोसेस देखिए, चाइल्ड साइकोलॉजी में काम मीन्स ऑफ स्टडी ऑफ अ चाइल्ड prescriptions of the memory, thinking, imaginations, learning, personality and mental functions, द इन्फ्लुएंस ऑफ द, इन्हीं सभी चीज पर एनवायरमेंट का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा डिफरेंसेस आते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड, आपको पता है सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, सब में अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट है, आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, इट मीन्स में आप डिफरेंसेस देख सकते हैं। आपका स्ट्रक्चर अलग होगा, हो सकता है आपका कलर फेयर हो, मेरा थोड़ा डार्क है, या मेरा हेयर स्टाइल या मेरे बालों का कलर ब्लैक है, व्हाइट है, आपका ग्रे होगा या लाइट कलर जैसे भी होगा। तो या फिर आपके कर्ली हेयर होंगे, किसी के स्ट्रेट होंगे, आई का व्यूज आई का भी डिफरेंट होगा, थिंकिंग पावर अलग होगी, मेंटली मेरा मेंटल स्टेटस एंड आपका मेंटल स्टेटस दोनों ही डिफरेंट होंगे। तो हर चीज में डिफरेंट, या हाइट वेट के अकॉर्डिंग मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर, तो सभी को इसमें डिफरेंट होते हैं। एंड तो इम्पोर्टेंट ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्यों है? The most important fact, the embrace of the study of the child psychology, child development, is that during this period that the foundations of the later adult life is laid. It is age of growth and the period all kind of development growth. The important of Sunita ji, am I audible Sunita ji? सुनीता जी, म्यूट है। यस मैम, म्यूट था फोन, पता नहीं चला। ओके ओके ओके, नो इशू। आज हमारा फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है, ये सेकंड पेपर आज ही से स्टार्ट हुआ है, चाइल्ड साइकोलॉजी, और हो सकता है मे बी मैं आने वाले टाइम में डेली ही क्लास लूं, क्योंकि हमें ओके मैम। फर्स्ट ईयर का सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, और अपने जो भी आपको फाइल्स वगैरह है सभी चीज आप अपनी प्रिपेयर रखिए। कभी भी आपका सितंबर के बाद कभी भी आपका प्रैक्टिकल या टीचिंग ट्रेनिंग के लिए आपका इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, न्यूज। ओके, तो हम ओके मैम। कोर्स को मैम कंप्लीट, जो लेसन प्लान हमने बनाने हैं वो हमने किसके ऊपर बनाने हैं? फाइल पेजेस के ऊपर बनाने हैं कि नोटबुक के ऊपर? आप फाइल पेजेस पे भी बना सकते हैं और नोटबुक पे भी बना सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। कोई बड़ा रजिस्टर होता है उस पे भी बना सकते हैं आप, और फाइल पेजेस पे भी बना सकते हैं, बट फाइल या को फिर अच्छे से, वो प्रैक्टिकल नोटबुक मिलती है ना बीच में, उसमें ऐसे बनाना भी पड़ेगा ना कुछ, ऐसे बच्चे को पढ़ाया है जैसे हाँ वो 1 2 आप वगैरह वो करवाया, तो वो भी कुछ भी। बनाना है आपको, एंड देन आप पिक्चर भी कट करके लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा, वैसे भी कर सकते हैं। हाँ, पिक्चर्स भी कट करके आप लगा सकते हैं, उसको पेस्ट कर सकते हैं वहां पर, ठीक है मैम। राइट। क्योंकि अब मैं क्लास आने वाले टाइम में कुछ दिन के बाद मैं रेगुलर ही क्लास रखूंगी, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है फर्स्ट ईयर का आपका। ये सब कंप्लीट होने के, अक्टूबर नवंबर तक ये कंप्लीट करने के बाद फिर हमारा सेकंड ईयर का स्टार्ट होगा, कि आपका। ओके मैम। ओके, तो आप थोड़ा ठीक है मैम। सीरियस हो जाइए। ठीक है मैम। Importance of the child psychology, the importance of the child psychology, because to evidence by the fact the one most of the important thing in the parents teachers life knowledge about the child, they are always interested to know that what does a child do, how and why he does it, and how can be the help of this field। तो इस तरह से हम बच्चे का चाइल्ड साइकोलॉजी पर वर्क कर सकते हैं। इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग, देखिए सबकी एक जो अंडरस्टैंडिंग है एज अ इंडिविजुअल, सबका डिफरेंट है, सोचने समझने का एंड अंडरस्टैंडिंग
किसी को समझने का बिल्कुल अलग ही वे होगा, अलग ही एक प्लेटफॉर्म होगा, अलग ही लेवल होगा। हम सेम लेवल पे सबको नहीं समझ सकते हैं, दूसरा हमें नहीं समझ सकता है। द मेन utility, the study of the child psychology is that the help one can that drive the understanding child behavior as an individual being. A child psychology discovered the universal journal fact that apply to the behavior of the most children's common situations or time. This law can the applied find where the particular child, his physical, mental, social, and the moral development proceed is the normal piece. It the child, the psychology who can tell the child progress, background, slow at the normal piece of the entire. रैपिड क्रू मेंटल वीकनेस, देखिए बहुत ही ज्यादा अगर मेंटल वीकनेस है, some very attractive and the appreciation intelligence children mislead their parents. अगर बच्चा मिसलीड हो रहा है, उसको हमें कंट्रोल करना है, हमें देखना है कि बच्चा मिसलीड कहाँ से हो रहा है, क्योंकि उसको एनवायरमेंट वैसा मिल रहा है। हमें उसको एनवायरमेंट अच्छा देना है कि बच्चा वहां से मिसलीड ना हो, मिसगाइड ना हो, वो किस वे पे जा रहा है, उसके लिए एनवायरमेंट बहुत अच्छा था। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि एक बच्चा पुअर फैमिली में, एक बच्चा बहुत अच्छे मिडिल क्लास में, या एक अच्छे वेल एजुकेटेड उसमें। तो आप देखेंगे कि जो बच्चा वेल एजुकेटेड, उसका उठना बैठना चलना बोलने का वे एंड टॉकिंग ऑफ वे बहुत अच्छा होगा। एंड एक पुअर फैमिली में जिसके पेरेंट्स बाहर काम करने जा रहे हैं, या मदर भी घर में नहीं रहती है, वो भी अर्न करने जाती हैं, तो वो उस बच्चे पे कोई फोकस नहीं कर रहा है, नहीं देख रहा वो उसका फ्रेंड सर्कल क्या है, या फिर वो बच्चा किस एनवायरमेंट में उसकी परवरिश हो रही है। तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि अगर दो ट्विंस हैं, अगर हम एक ही मदर फादर के दो बच्चे हैं, ट्विंस हैं, दोनों को अलग अलग एनवायरमेंट देखते हैं, एक को रिच एनवायरमेंट, एक को पुअर एनवायरमेंट, तो आप देखेंगे दोनों में बहुत डिफरेंसेस होगा। हो सकता है कि एक रिच फैमिली का, रिच एनवायरमेंट का बच्चा काफी अच्छा पढ़ने में नहीं हो, हर चीज को अंडरस्टैंडिंग करने में उसका ग्रोथ लेवल फिजिकल, इट मीन्स हम समझ से बात नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ ओनली उसकी अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप होगी। इट मीन्स हम बात करते हैं कि बच्चा का फिजिकल ग्रोथ भी डिफरेंट होगी, एक रिच एनवायरमेंट, एक पुअर एनवायरमेंट के। एंड रैपिड दिस कहना चाहिए क्रूसिंग प्रॉब्लम मेंटल एंड नॉलेज ऑफ द चाइल्ड स्पेशली एबिलिटी। ये हमारे कुछ पॉइंट्स है जिसके ऊपर हमें बात करनी है। नॉलेज ऑफ द चाइल्ड स्पेशली एबिलिटी क्या होती है? अनदर वे इन विच चाइल्ड साइकोलॉजी कैन बी द ग्रेट हेल्प is to point out of the age in which child may the expect to the display universal proficiency in a particular field. He can also point the especially ability a child may have. प्रोग्राम्स वेलफेयर एंड इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम एंड वेलफेयर सोसाइटीज चलाई जाती हैं, जहां पर बच्चे का, चाइल्ड का वेलफेयर, उसका प्रोग्रेस हो, चेंजेस हो। एंड अंडरस्टैंड अडल्ट बिहेवियर, अडल्ट बिहेवियर को समझना चाहिए। अडल्ट बिहेवियर में बच्चे को ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए, उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए, उसके साथ एज ए फ्रेंड का बिहेव करना चाहिए। एंड अंडरस्टैंड सोशल प्रॉब्लम, देखिए सोशल समाज में, हमारे समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम है। A great amount of the search carried of the present century of the has indicate that many of the social problems बहुत ज्यादा हैं around the aggregate of the individual problems concerning the personality। देखिए आप पर्सनालिटी भी देख सकते हैं, बच्चा माइंड एक्सप्लेन उसका, जैसे मैंने आपको बताया कि सोसाइटी में, समाज के द्वारा, सोशल, किस समाज में बच्चा रह रहा है, किस सोसाइटी में रह रहा है, कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो इस पर हमें वर्क करना चाहिए, बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ द चाइल्ड इज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। The knowledge of child psychology can help everybody in a almost very situationally every field of a life. It can help the understand life in a better way, but one cannot forget the facts of the knowledge child psychology can help teach and the education system of the most. अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ पर हमें वर्क करना चाहिए, उसे हमें समझना चाहिए। जॉन एडम्स कहते हैं कि
that the teacher must know the student better than know the subject can be he teach. एंड पेस्टोलॉजी ने भी कहा है, देखिए, was of the opinion that education must be the realistic and the accurate knowledge of the student mental process. इम्प्रूवमेंट ऑफ द टीचिंग मेथड, हमें अपने टीचिंग मेथड को भी इम्प्रूव करना चाहिए। हमें टीचिंग मेथड में चाइल्ड सेंटर हमें एक रखना चाहिए कि चाइल्ड सेंटर हमारा टीचिंग होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर होनी चाहिए कि बच्चा सिर्फ सुने। हमें बच्चे को वो माहौल देना चाहिए, बच्चे की प्रॉब्लम को समझना चाहिए हमें। ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए। बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, कहाँ बच्चा लैग कर रहा है। भाई अगर बच्चा, आप बच्चे को सभी को क्लास में समझा रहे हैं, कुछ भी आपने से, पर आपने देखा कि उसमें से 5 स्टूडेंट ऐसे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। भाई उनकी प्रॉब्लम क्या है उसको हमें जानना है। हमें ये नहीं कि सिर्फ आए और लेक्चर देके हम चले जाए। बच्चा क्यों नहीं आ रहा है क्लास में, भाई उसको क्या प्रॉब्लम है, उसका घर का एनवायरमेंट क्या है, तो इस चीज पे हमें पूरा फोकस करना है। इम्प्रूवमेंट ऑफ करिकुलम, हमें अपने करिकुलम पर भी इम्प्रूवमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि करिकुलम कैसा होना चाहिए। एक हमारा करिकुलम, चाइल्ड साइकोलॉजी द लीड द इम्पोर्टेंट द इम्प्रूवमेंट एज द करिकुलम फॉर टीचिंग चिल्ड्रन। इट लीड द स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। मुझे किसी भी चीज पे करिकुलम ये नहीं होना चाहिए बच्चे को, नहीं मुझे ये पढ़ना है, इतना सारा बर्डन उसके ऊपर नहीं डाला। हमें प्ले वे मेथड बच्चे के लिए यूज करना है। प्ले वे मेथड से बच्चा सीखे, एक रियलिस्टिक होके सीखे। ऐसा नहीं होना चाहिए बस रट्टूफिकेशन बेस, रटना है, मेमोराइज कराना है चीजों को, वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें कुछ चेंजेस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट। इवोल्यूशन ऑफ द टेस्टिंग, इवोल्यूशन का तरीका हमें चेंज करना है। हमें ये नहीं कि एक ही तरह से हमें सबको एवोल्यूट करना है, नहीं, हमें अलग अलग बच्चे को अलग अलग तरह से करना है। भाई इसकी क्या प्रॉब्लम है। इट द प्रोसेस ऑफ द एजुकेशन बोथ द टीचर एंड द टॉट द कंसल्टेंट इन अ नीड नाउ हाउ फॉर दे हैव द प्रोग्रेस। उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखना है हमें। फिर हमें पता चल गया कि भैया हमने इवोल्यूट किया, हमने टेस्ट किया, बच्चे में यहाँ कमी है। उसके बाद हमें क्या करना है। अब एग्जांपल लीजिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने आपको देखा कि आपको ये प्रॉब्लम, वो डायग्नोस करेगा उसका क्या उसका प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ये है। तो हमें बच्चे की प्रॉब्लम को जानना है, इवोल्यूट करना है, उसका टेस्टिंग करना है, कहाँ वो लैक कर रहा है, उस प्रॉब्लम को जान पर इसको डायग्नोस करना है, उसको वर्क करना है, उसको फुलफिल करना है। जहां बच्चा लैक कर रहा है उस चीज को हमें पकड़ करनी है। डिसिप्लिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन का डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। ऑर्डर, डिसिप्लिन एंड इंस्टीट्यूशन डिपेंड अपॉन द भाई स्कूल का डिसिप्लिन भी इम्पोर्टेंट है। जहां बच्चा पढ़ रहा है वहां का डिसिप्लिन होना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। For example, if the particular institution's boy were apt to the very troubleness during the lunch hours में, they throw the food the each other the and waste, वो क्या करते हैं, फूड को अपना इधर फेंकना उधर फेंकना। ये सारी चीजें हमें रोकनी होगी। एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए कि बच्चा लंच प्रॉपर करे, जितना पेरेंट्स ने लंच दिया है उसको लंच को पूरा फिनिश करे। लंच में भी ऐसी चीजें पैकेट्स नहीं होने चाहिए, पैकेट्स वाली चीजें, चिप्स वगैरह नहीं होना चाहिए। इट मीन्स हेल्दी फूड लाना चाहिए, घर का बना हुआ फूड लाना चाहिए, ग्रीन फूड लाना चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन अ टीचर टॉट रिलेशनशिप, एक इम्प्रूवमेंट होना चाहिए टीचर के पढ़ाने में, पढ़ाने के तरीके में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, नीड है, बहुत ज्यादा नीड है आज के टाइम में। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक है, ये है तो फर्स्ट ही टॉपिक। इसको हम नेक्स्ट डे, हो सकता है कल भी मैं क्लास ले सकती हूँ, अदरवाइज फिर नेक्स्ट वीक में क्लास लूंगी, उसमें इसको हम कंप्लीट कराएंगे। जैसे मैंने आपको कहा है कि मैं आने वाले टाइम में शायद जुलाई से जुलाई मिड से 15 जुलाई से मैं शायद रेगुलर क्लास लूंगी, डेली क्लास होगी 1 आवर्स की, हम कोर्स कंप्लीट करेंगे। क्योंकि बिकॉज ऑफ मैनी स्टूडेंट्स अभी, क्योंकि स्टेट्स के ब्रेक्स चल रहे हैं तो कहीं घूमने गए हैं तो नहीं है, उसके बाद हम आफ्टर 15 जुलाई के बाद हम रेगुलर क्लास लेंगे, डेली क्लास होगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैम जो हमने लेसन प्लान बनाने हैं वो हमने सिर्फ नर्सरी क्लास का ही लेना है कि हम किसी भी क्लास का ले सकते हैं, यूकेजी, नर्सरी, एलकेजी? हाँ देखिए, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में 5 क्लासेस आती हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट और सेकंड, राइट। यस मैम।
इन क्लासेस में से कोई भी आप ले सकते हैं, एलकेजी का भी अपनी ले सकते चॉइस से बना सकते हैं, हमने 5 करने हैं, जो मर्जी टॉपिक ले सकते हैं, यस नर्सरी, यस यस। एलकेजी किसी का भी, है ना? हाँ हाँ, कोई भी टॉपिक लीजिए, बट टॉपिक ऐसा होना चाहिए उसके आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए, उसके टीएलएम वगैरह सब चीज आपके पास होनी चाहिए। ओके ठीक है मैम। ओके। ओके मैम, थैंक यू।